Okay, so if you remember लास्ट सेशन में हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटीज फाइंड किया था आफ्टर कोलिजन एंड द equations turned out to be v1 equal to, so we were discussing collisions here, head-on elastic collisions of two objects, their final velocities. We have obtained equation as m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 upon 2m2 u2 upon m1 plus m2 upon m1 plus m2. So this is what you get. And for v2 हमें मिला था m2 minus m1 upon m2 plus m1 into u2 plus 2m1 u1 upon m2 plus m1. This is what we have obtained in the last session. In the last session, we have obtained equations for final velocities after collision. दो ऑब्जेक्ट थे, कोलाइड होने के बाद उन दोनों का फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको ये मिला था. Right, simple thing. Now we want to discuss special cases here. So we want to see what happens if there are two cases, special cases. Case number one, what happens when m1 and m2 are equal? मतलब both the colliding objects are equal in mass. दोनों का मास सेम है, राइट? यहाँ पे आप बोल सकते हो, इस केस में आप बोल सकते हो मास सेम होना मतलब साइज सेम होना. अगर दोनों का मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी भी सेम है तो. So if m1 equal to m2, बहुत सिंपल है. Then you will get v1 equal to, अगर m1 equal to m2 है तो v1 क्या आएगा? 0 upon m1 plus m2 into u1. क्योंकि m1 minus m2 will be 0, तो first term will be 0, right? तो first term will be 0, so I will be just writing 0 plus 2 times of m2 u2 upon m1 और m2 इक्वल है तो नीचे आएगा 2m2, so m1 plus m2 is 2 times of m1 और 2 times of m2. तो ये और ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिला v1 equal to u2, right? Similarly v2 will be equal to 0 plus 2m1 u1 upon m1 plus m1 is 2m1, 2 cancel, m1 cancel, तो v2 is equal to u1 मिला हमको, right? Good. So if two colliding bodies had same masses, one was moving with velocity u1, other was moving with u2, and masses are same. After collision, what is happening? After collision, पहले का final velocity v1 will be equal to u2 और दूसरे का final velocity v2 will be equal to u1. मतलब there is interchange or exchange of velocities, right? Simple. पहले का initial velocity बन गया दूसरे का initial, दूसरे का final, और दूसरे का initial velocity बन गया पहले का final. So there is just exchange of velocities. First object has exchange velocity with second, right? तो सिंपल केस था. स्पेशल केस नंबर 1 में हमने आज देखा if masses of both the colliding bodies are same, in that case there is just interchange or exchange of velocities. पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो था बिफोर कोलिजन, इट बिकम्स velocity of second object after collision, and second object का velocity before collision becomes
पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, so there is just interchange of velocities. Case number 2. Case number 2, someone asked me yesterday, what will happen if a moving car collides with a car at rest? मतलब इस केस में क्या है, पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और दूसरा जो है वो रेस्ट पे है, नॉट मूविंग, राइट? So what will happen is this: if u2 is 0, then v1 will be equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 0. क्योंकि if you remember the equation, सेकेंड टर्म में u2 है और u2 तो हमने बोला है 0 है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 0, इट इज 0, राइट? तो आपको मिल जाएगा v1 इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1, और आपको v2 मिलेगा. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट v2, दैट इज 2m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2. कैसे? तो सब्स्टिट्यूट करो. इफ आई पुट u2 इक्वल टू 0, इफ आई पुट u2 इक्वल टू 0, तो आएगा आपका 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 u1. So this is the only correction here. 2m1 u1 upon m1 plus m2. Okay, then the thing is, इस केस में एक ऑब्जेक्ट नंबर 2 रेस्ट पे है. मान लो हमारे पास एक कार है, सम कार स्विफ्ट डिजायर रेस्ट पे खड़ा हुआ है, पीछे से दूसरा कार आया, उसने ठोक दिया. ओके, राइट. अगर जिस कार ने ठोक दिया वो भी स्विफ्ट डिजायर हुआ तो क्या मतलब, व्हाट हैपेंस इफ m1 एंड m2 आर इक्वल? तो इस केस में क्या होगा, v1 इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि m1 माइनस m2 दैट इज 0. ये v1 के इक्वेशन से मैं यूज कर रहा हूँ. ओके, सो आई विल से फ्रॉम 1 and from 2 again v2 will be equal to 2m1 u1 upon 2m1, मतलब that is u1. So v2 equal to u1 from 2. So what is happening? This is before collision. ये है before collision. After collision क्या होगा? Object 1 will be at rest and object 2 will start moving with velocity equal to u1. मतलब again there is exchange of velocities, right? तो पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, ओके, दूसरा रेस्ट पे था. अब पहला रेस्ट पे, दूसरा मूव हो रहा है विद द सेम वेलोसिटी. यस, पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में कभी देखा है क्या आपने? एक स्विफ्ट डिजायर ने आके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी मूव हो रहा था, उसने आके पीछे से दूसरे को ठोक दिया, तो जो दूसरा व्हीकल था वो 100 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ने लगा. ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? देयर आर मल्टीपल रीजंस. वन ऑफ दोज इज बीइंग फ्रिक्शन. देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, राइट? बट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो ऐसा होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ऐसा होगा, राइट? तो दो स्पेशल केसेस देखे हमने आज अभी तक. हमने कल जहाँ पे रुके थे, कल हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के इक्वेशंस डिराइव किए थे. वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं. हमने स्पेशल केसेस डिस्कस किए कि अगर दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के मासेस सेम हुए तो क्या होगा. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इनिशियल ऑफ सेकेंड and final velocity of second is equal to initial of first. मतलब there is exchange of velocities. Then अगर second object रेस्ट पे था, सिर्फ पहला मूव हो रहा था तो क्या होगा? That is what we have
seen here. And if masses are same, then what happens? Okay, if masses are same, then first object will come to rest and second will start moving. ऐसा होगा. Next topic. Next topic is basically loss in kinetic energy. Loss in the kinetic energy. Loss बोला मतलब we are talking about inelastic collision now. इससे पहले elastic case था. Now since I am talking about loss, मतलब the collision is inelastic, loss in kinetic energy during perfectly inelastic head-on collision. Perfectly inelastic head-on collision. By the way, you need to remember this. Deleted for academic year 2021. So why I am taking? Because I want to take. क्योंकि हमको ये लगने वाला है आगे for the purpose of JEE NEET लग सकता है, तो I will not take any chance of skipping any of this. All right, तो मैं लूँगा. Good. And in any case, all of you should be able to do physics no matter what is the difficulty level. तो मुझे लेना है ये. Right. तो पहली बात तो perfectly inelastic collision में होता क्या है? अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है with masses m1 and m2, right? If they're moving with velocities u1 and u2, after collision, this is scenario before collision. After collision क्या होता है कि both of this combine and move together. तो दोनों combine हो जाएंगे. Combine नहीं भी होंगे तो you can say both of them are stuck together and they move with a common velocity v. Right. So in perfectly inelastic collision, two objects combine and move together after collision. So this is after collision. This is first thing you should know. बाकी अपने आप सब derive होते जाएगा. Right. So let us consider a perfectly inelastic collision और head-on है. Perfectly inelastic head-on collision of two bodies of masses m1 and m2 with respective or corresponding initial velocities u1 and u2, right? Since the collision is perfectly inelastic, what happens since it is perfectly inelastic? आपको पता है, they move jointly after the collision. With final velocity f. Let us say v.
विथ फाइनल वेलोसिटी v, राइट। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन वी आर टॉकिंग अबाउट, linear momentum is always conserved. Okay, so according to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, what do you know about linear momentum conservation? Initial linear momentum of first object plus second object is equal to final linear momentum, मतलब after collision. After collision, what will be linear momentum? Total mass into v. Total mass क्या है? m1 plus m2 into v. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये बेसिक्स पता है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये पता है। तो पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था कोलिजन से पहले, तो पहले का m1 u1, दूसरे का m2 u2, ये हो गया टोटल इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन दोनों कंबाइन होके मूव हो रहे हैं, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस में आएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल मोमेंटम। यहाँ से मुझे क्या मिला? आई कैन जस्ट हैव v इज इक्वल टू m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. Let us say equation number 2, right? Okay, then since the collision is inelastic, there is loss in kinetic energy. So loss in kinetic energy delta ke is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. लॉस मतलब क्या? लॉस मतलब इनिशियली ज्यादा था, बाद में कम हो गया, राइट? लॉस तो इसको बोलते हैं ना, मेरा लॉस हुआ, मतलब क्या हुआ? आई हैड समथिंग लाइक इन रियल लाइफ, इन ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वी जस्ट कीप रनिंग आफ्टर मनी। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत मतलब आई मीन ज़्यादा पैसा था, देन आई डिड सम बिजनेस और लॉस हो गया, मतलब अभी कम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी भी वही है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज मोर देन फाइनल, सो दैट इज व्हाई इनिशियल माइनस फाइनल, राइट? व्हाट इज टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? बिफोर कोलिजन दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों अलग अलग से मूव हो रहे थे, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे का काइनेटिक एनर्जी m2 u2 स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ। कोलिजन के बाद दोनों साथ में चलने लगे, मतलब हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, इजी है ना? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। तो कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन हो गए, जॉइंटली जा रहे हैं, तो m1 प्लस m2 इज टोटल मास v स्क्वायर। गुड, ओके, बट दैट इज द रीजन, ये v पहले ही इक्वेशन नंबर 2 मैंने डिराइव करके रखा है, दैट वाज द रीजन, क्योंकि हमको लगने वाला है यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा ये हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर इज ऊपर दिया हुआ है हमारे पास, ये दैट इज better I write down this step over here minus half, ये to be continued है वहां से, so don't get confused. If you're getting confused, I need to rearrange certain things. Let me just rearrange certain things. Okay, minus half m1 plus m2 and v का square, v is m1 u1 plus m2 u2 upon m1 प्लस m2 का स्क्वायर,
that is equal to half m1 u1 square plus half m2 u2 स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये जो नीचे जो टर्म लिखा है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर होने वाला था लेकिन एक m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड था तो वो कैंसिल हो गया, तो मैंने एक ही बार लिखा, तो थिंग्स गेट कैंसल्ड आउट इन सम स्टेप्स। तो m1 प्लस m2, एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया। गुड, सिंपल। अब टू फर्दर सिंप्लीफाई, सबसे पहले तो ये हाफ हाफ हाफ, आई डोंट लाइक इट, मैं हाफ 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 कॉमन निकाल के बाकी सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, राइट। तो आई कैन टेक आउट हाफ कॉमन, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस माइनस, राइट, नीचे m1 प्लस m2 है, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ m1 u1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 m2 u2 प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, कुछ नहीं, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर किया है, दैट्स इट, अपॉन m1 प्लस m2। रिमेंबर, पहले दोनों टर्म्स में m1 प्लस m2 नहीं है, सिर्फ थर्ड टर्म में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग will be m1 m2 upon m1 plus m2 into, you should get u1 minus u2 square whole square, right? Okay, so this should be the change in kinetic energy। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, but you have to just do little bit of algebra here। देखो बात ऐसी है, इससे पहले का जो हम लोगों ने ये जो कुछ भी किया, v1 v2 फाइंड किया, फिर स्पेशल केसेस लिए, ये सारा था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और मैक्सिमम लॉस होता है अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो हमारे पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स थे, पहले का स्पीड u1 मास m1, दूसरे का स्पीड u2 मास m2, दोनों कोलाइड होने के बाद दे आर मूविंग जॉइंटली, दोनों एक साथ जा रहे हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज v एंड फाइनल मास इज m1 प्लस m2। हमको निकालना है व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोलिजन किसी भी टाइप का हो, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ v। फिर वहां से मुझे मिल गया v, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 2। देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। इनिशियल मतलब पहले ऑब्जेक्ट का हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए थे इसलिए। गुड, फिर क्या v के लिए सब्स्टिट्यूट किया, m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 इक्वेशन 2 से, and then we just went on simplifying to obtain what is the change in kinetic energy। okay, good। यहाँ पे भी आप स्पेशल केस डिस्कस कर सकते हो, what happens if m1 and m2 are equal। सिंपल है, if m1 and m2 are equal तो m square upon 2m, तो you just have to substitute and solve it, so that can also be discussed, right। तो इजी केस था, why I have taken, I told you we cannot afford, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लग सकता है। another thing, forget about JEE NEET for the time being, but you may need this information, at least formula। so what I'm expecting is not more, I'm expecting that equation number 3 आपको याद रहना चाहिए, that's it। okay, okay,
So this takes us to a new topic, which is a little tricky, that is collision in 2 dimensions. Now in 2 dimensions, that is non-head-on collision. Non-head-on collision. Okay, so अब things will become little complicated. They are not actually complicated, but the way books have written all this makes it complicated, क्योंकि ये इतना easy topic है. If you imagine what is happening, दो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का कोलिजन होने वाला है और ये नॉन हेड ऑन है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स अलोंग द सेम लाइन मूव नहीं हो रहा है. याद करो हेड ऑन में क्या देखा था. हेड ऑन में दोनों ऑब्जेक्ट्स दे वर मूविंग एग्जैक्टली अलोंग द सेम लाइन व्हिच वाज एक्स एक्सिस. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे कैसा है फिर? यहाँ पे मान लो दैट बिफोर कोलिजन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेसिफाइंग डायरेक्शन मैं दो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ. ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इसको मैं बोलूँगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों बोलेंगे? ये जो डॉटेड लाइन है, व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी क्लियर सून. इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे. ओके, तो ये हमारे पास है पहला ऑब्जेक्ट. सपोज ये यहाँ से आ रहा था, द डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. So this is the direction of initial velocity u1 of the first object, right? Okay, and there is another object. अभी तक कोलिजन हुआ नहीं है ना, से मान लो. अगर आपको लगता है कि टच करके सरफेस दिखा रहा हूँ तो कोलिजन हो गया, तो what I will do is just change it. Okay, just change it. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फिर बोलोगे कि एक ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट में दोनों के सेंटर है और बोल रहे हो कि कोलिजन नहीं हुआ. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग. तो आई जस्ट वांट टू शो समथिंग वेरी स्पेसिफिक हियर. तो मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों को कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ. तो दैट विल मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. राइट, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये आया किसी और डायरेक्शन से. मान लो ऐसा इनिशियल वेलोसिटी u2, तो इसका मास m1 है ऑफ कोर्स, और इसका मास m2 है. इनिशियल वेलोसिटी u1 of object 1 makes an angle alpha 1 with respect to line of impact, and object 2 makes an angle of alpha 2 with respect to line of impact. Line of impact क्या है? It will be made clear very soon. फिलहाल समझ लो. कोलिजन होने के बाद they will change directions, and let us say पहला ऑब्जेक्ट गया इस डायरेक्शन में with final velocity v1, and final velocity v1 makes angle beta 1 with line of impact, and second object जो है वो गया with velocity v2, and the angle made is beta 2 with respect to line of impact, right? So because this color is not showing up properly, I need to change. मैं वापस बता रहा हूँ. कोलिजन के बाद पहला ऑब्जेक्ट गया इस डायरेक्शन में with final velocity v1, angle beta 1,
with respect to line of impact, और ये गया somewhere here u2 v2 and angle made is beta 2. ओके गुड. तो इस केस में इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको दो डायरेक्शंस कंसीडर करनी पड़ेगी. एक है ये रेड डॉटेड लाइन विच इज कॉमन टेंजेंट, मतलब बेसिकली y एक्सिस. दूसरा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या? यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपको पता होने चाहिए. जब कोलिजन हुआ तो ड्यूरिंग कोलिजन, so I am writing it differently here, diagram B, this is diagram A. ड्यूरिंग कोलिजन जब हुआ तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ने एक दूसरे पे फोर्स एक्ट किया. सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ऑब्जेक्ट 2 पे भी फोर्स हुआ. एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है. फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. देखो एक चीज याद रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉल कोलाइड हो रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच अदर, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2 and 2 on 1, they are always along the line passing through the center, मतलब लाइन ऑफ सेंटर्स बोल सकते हो. इट इज ऑलवेज इन द लाइन ऑफ द सेंटर्स. मतलब इस केस में ऐसा है कि दैट लाइन इज अलोंग एक्स एक्सिस. कैन दैट लाइन बी अलोंग वाई एक्सिस? यस, इट कैन बी. कैसे? तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा यहां से आया, दूसरा यहां से आया, तो इस केस में यस, फोर्सेस कैन बी अलोंग वाई एक्सिस. हो सकता है. ओके राइट. तो टेक अवे पॉइंट्स, मतलब बेसिकली समझना क्या है. कनेक्ट योरसेल्फ विद द सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों का कोलिजन होगा. कोलिजन के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, या फिर दो पर्टिकुलर लाइंस इंपॉर्टेंट है. एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब जब कोलिजन होगा तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, दैट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे. और कॉमन टेंजेंट है दिस कॉमन टेंजेंट, देयर इज नो फोर्स अलोंग कॉमन टेंजेंट. है क्या यहाँ पे? इज देयर एनी फोर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन कॉमन टेंजेंट? नो, देयर इज नो फोर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएंगे. राइट. ओके, so let me first specify what is happening. Okay, right. तो और एक चीज है कि ऐसे केसेस में कम से कम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसका डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल नॉट बी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. मतलब क्या? मतलब मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट इन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ऐसा मूविंग विथ u1 इन दिस डायरेक्शन, तो कम से कम दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा, इट विल नॉट बी मूविंग इन द सेम लाइन, इट विल बी कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. कम से कम एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. कम से कम एक. ओके राइट. अदरवाइज फिर 2 डायमेंशन मोशन नहीं हुआ ना. अगर दोनों वापस सेम लाइन के अलॉन्ग मूवने लगे तो 1 डायमेंशन में आ गया, वो हेड ऑन कोलिजन हो गया वो. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ओके, now here you have to consider two lines which are perpendicular to each other. To understand a non-head-on collision, we need to consider two mutually perpendicular directions. Two mutually perpendicular directions. उसमें से एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट
along which action reaction force acts. Another is perpendicular to line of impact and along the common tangent. So one of them is line of impact along which action reaction forces act, and other being perpendicular to line of impact. Yeah, the other being perpendicular to it along common tangent. That is better way to say. Right. तो ये बताना चाहिए. And then as I told you, in this case, कम से कम एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. In this case, the direction of at least one initial velocity is not, ये important है, is not along the line of impact. Okay, right. Then let us say u1 bar is the initial velocity of first object which makes an angle alpha 1 with respect to line of impact. Let, देखो, this is a correct way of writing. क्यों भूल जाते हैं ना हम लोग. The problem is फिजिक्स समझ भी आता है लेकिन लिखना नहीं आता. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है, लिख देना, सिंपल है. लेट u1 bar be, क्या है u1 bar? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ object 1 with mass m1, right? Then alpha 1 क्या है वो लिख देना. अगर ज्यादा लंबा नहीं करना तो यहीं पे लिख देना फिर. with mass m1, initial velocity of object 1 with mass m1 which makes angle alpha 1 with respect to line of impact. With respect to line of impact. Similarly, what is u2 bar? Easy. u2 bar is initial velocity of second object. Initial velocity of second object, mass m2 मान लेते हैं, which makes angle alpha 2 with respect to WRT stands for with respect to line of impact. Similarly, you can define what is v1 bar. Final velocity of first object which makes angle beta 1, angle beta 1 with respect to line of impact. LOI stands for line of impact here onwards. I am little lazy, I am sorry, but lazy लोग ही physics अच्छा कर पाते हैं. This is my understanding. Science overall, so be lazy and do science better way. Final velocity of object 2
final velocity of second object v2 bar, which makes angle beta 2, which makes angle beta 2 with respect to line of impact. Good, that's it. इतना आपने समझा दिया, बहुत हो गया। तो हमने क्या किया अभी तक, हमने अभी तक दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे। पहले का स्पीड था u1 डायरेक्शन था अल्फा 1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दूसरे का था u2 डायरेक्शन था अल्फा 2 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, एक है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या, वो लाइन जिसके अलोंग एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट होंगे, दैट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दूसरा उसको परपेंडिकुलर मतलब कॉमन टेंजेंट टू द बोथ कोलाइडिंग स्फीयर्स, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। गुड। बीटा 1 after collision direction of object 1 with respect to line of impact is beta 1, and beta 2 is the direction of object 2 after collision with respect to line of impact। तो हमने इसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, दैट्स इट। इसके बाद सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को, मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि एक ही जगह पे सब ड्रॉ करने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उससे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल केस है। ये था u1, ये था अल्फा 1। इसके लिए इसका जो x कंपोनेंट होगा, लेट अस से मैं यहाँ पे भी एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर ही लेता हूँ एनीवेज। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हियर, this x component of velocity here is, I mean you should know, u1 cos alpha 1, and this should be u1 sin alpha 1, right? ये बताना चाहिए। You should know what is initial velocities along x and y. Similarly ये था u2। अब ये जो u2 है इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, राइट? तो as you remember this was alpha 2 angle, तो ये जो होगा ये होगा u2 cos alpha 2, और ये जो होगा that will be u2 sin alpha 2, राइट? तो कंपोनेंट्स अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट है। u2 sin alpha 2 मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 डायमेंशन में जब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हो तो उस केस में अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है और अलोंग कॉमन टेंजेंट अलग से होता है, तो वो समझेगा आपको। बाय द वे ये था बिफोर कोलिजन का सिचुएशन, तो आई विल जस्ट राइट इट हियर बिफोर कोलिजन। मैं एक एक स्टेप डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज इट इज लिटिल heavy for you. Okay, then what happens after collision? After collision ये object 1, ये object 2, ये गया यहाँ पे v1 velocity के साथ, एंगल बनाया beta 1, ये गया in some other direction with velocity v2 and angle beta 2। वापस से इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। गुड, देन इसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे यार, यू हैव टू थिंक नाउ। ये आपको करना पड़ेगा, इट इज सिंपल। वापस से सिंपल, क्यों सिंपल, वही है सब। फिर वापस से इसके 2 कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। मान लो थोड़ा सा इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। ये होगा आपका v1 sin beta 1, ये होगा आपका v1 cos beta 1।
देखो हमको अप्लाई करना है लीनियर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन और मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूँ वेलोसिटी का। एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। क्यों वो करना पड़ेगा? क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यस, यू हैव टू डू इट। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है v2 cos बीटा 2 और ये y कंपोनेंट है v2 sin बीटा 2। राइट, ये है आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन। नाउ इफ आई अप्लाई conservation of linear momentum along the line of contact, applying conservation of linear momentum along the line of contact, LOI, line of impact, not contact, sorry, line of impact, LOI, sorry, pardon me, LOI। तो देखो ऐसा है, इक्वेशन आपको मिलेगा, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। m1u1 cos alpha 1 प्लस m2 u2 cos alpha 2 इक्वल टू m1 v1 cos beta 1 प्लस m2 v2 cos beta 2। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। बाय द वे कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ये पता होना चाहिए। राइट, हमने किसके अलोंग अप्लाई किया? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया। तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, कोलिजन के पहले अलोंग एक्स एक्सिस मतलब अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन कौन से कंपोनेंट थे? u1 cos अल्फा 1। तो अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा m1 u1 cos अल्फा 1 इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए m2 cos अल्फा 2 इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया। तो देखो m1 u1 cos अल्फा 1 प्लस m2 u2 cos अल्फा 2 ये इनिशियल हो गया। फाइनल क्या है दिख रहा है इस डायग्राम में। आफ्टर कोलिजन क्या है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब अलोंग दिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्स एक्सिस क्या है? m1 v1 cos beta 1 is final linear momentum of object 1 and m2 v2 cos beta 2 that is for second object after collision। एक इक्वेशन ये मिल गया, मतलब let me just give name to some equation। So this is the first time I am naming, numbering, this is equation number 1, correct? Okay, now ऐसी बात है, since there is no force along the common tangent, मैंने already बताया force is only along line of impact, so there is no force along common tangent, therefore applying what? Why? Applying conservation of linear momentum gives conservation of linear momentum gives, first talk about first object individually। पहले हम लोग पहले ऑब्जेक्ट की बात कर लेंगे। पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल लीनियर मोमेंटम अलोंग कॉमन टेंजेंट था m1 u1 sin अल्फा 1। इफ यू डोंट रिमेंबर यू कैन लुक हियर, ये जो कंपोनेंट है जिसको मैंने अभी भी ब्लैक किया है दैट इज u1 sin अल्फा 1। ये वेलोसिटी मैं अगर मास से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मोमेंटम मिल जाता है, राइट राइट, इक्वल टू पहले ही ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन क्या आएगा? m1 v1 sin beta 1 इक्वेशन 2, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेम, सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 u2 sin अल्फा 2 इक्वल टू m2 v2 sin beta 2। अब ऐसा क्यों किया? along the line of impact
हम लोग टोटल मतलब पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का इक्वल टू फाइनल में पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का। लेकिन अलोंग कॉमन टेंजेंट मतलब अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग इंडिविजुअल मोमेंटस को इक्वेट कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल, दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल इक्वल टू दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अलोंग वाई डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये कि देयर इज नो चेंज इन the momentum because you remember Newton's second law of motion, F bar equal to dp bar by dt. To change momentum you need a force, but there is no force along common tangent, नहीं है force वहाँ पे, इसलिए मैं momentum change नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा? Initial momentum along y axis along common tangent is equal to final along common tangent because Newton's second law tells us that. Okay, ये बुक में नहीं लिखा तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, क्योंकि बुक में पढ़ोगे तो समझेगा ही नहीं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तभी भी नहीं समझ रहा होगा आज। इट इज लिटिल हेवी बट आई विल रिपीट इट, डोंट वरी, आई विल जस्ट रिपीट इट टुमारो। अब अल्टीमेटली हमें करना क्या था? हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो देयरफॉर just a minute, yeah, therefore coefficient of restitution is given by, easy है, velocity of separation। separation velocity क्या है? you see v2 cos beta 2 minus v1 cos beta 1, you can see it from this particular diagram। velocity of separation will be this value minus this value, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 cos अल्फा 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फोर्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते वक्त जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। u1 cos alpha 1 minus u2 cos alpha 2. So this is coefficient of restitution. Right. Okay. So I will repeat everything tomorrow again, but your task will be to go once through all that I have taken today.